Today we are going to discuss the important questions of surface area and volume. Let's discuss the first question. The radii of two cylinders are in the ratio of 2:3 and their heights are in the ratio of 5:3. Find the ratio of their volumes. तो यहाँ पे डायग्राम में हम देखें, वी आर हैविंग टू सिलेंडर्स, एक की रेडियस r1 है, हाइट h1 है, दूसरा रेडियस r2 है और हाइट को हमने h2 लिया है। रेडियस का रेशियो दिया है हमें 2:3। दैट मीन्स r1 बाय r2 आपको गिवन है 2/3 एंड जो हाइट्स का रेशियो गिवन है क्वेश्चन में दैट इज 5:3। दैट मीन्स h1 ऑन अपॉन h2 की वैल्यू आपके पास 5/3 है and question asks about the ratio of their volume. That means what we need to do, we need to calculate v1 upon v2. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर एच। Therefore, v1 upon v2 will be pi r1 square h1 divided by pi r2 square h2. पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। It can be written as r1 upon r2 whole square into h1 upon h2. This implies v1 upon v2 is equal to r1 upon r2 is 2/3 whole square into h1 upon h2 is 5/3. 2 square is 4, 3 square is 9 into 5/3. 5 4s are 20 divided by 27. Therefore, ratio of v1 ratio v2 will be 20:27. That will be our final answer. Let's discuss the second question. Same pattern का question है। The question is two volumes of two spheres are in the ratio of 64:27. Volumes का ratio दिया हुआ है। That means v1 by v2 की वैल्यू हमें गिवन है 64/27 एंड रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया पूछा गया है। s1 अपॉन s2 का रेशियो हमसे पूछा गया है। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होता है बच्चा 4πr², वेयर एज वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है बच्चा 4/3 πr³। That means if we need to calculate the area surface area ratio, we need radius, and radius we can calculate from the given ratio of volumes. Therefore, यहाँ पे हम v1 और v2 की फॉर्मूला पुट करेंगे। That will be 4/3 pi r1 cube divide by 4/3 pi r2 cube। 64 को हम 4 क्यूब लिख सकते हैं एंड 27 को हम 3 क्यूब लिख सकते हैं। 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। r1 upon r2 whole cube will be 4/3 whole cube. On comparing, we will get r1 upon r2 is equal to 4/3. This is our equation number 1. Now, to calculate the area surface area ratio, let's put the formula here. S1 upon S2 will be 4 pi r1 square divided by 4 pi r2 square. 4 pi cancel out हो जाएगा। S1 upon S2 is equal to r1 upon r2 is 4/3. Therefore, it will be 4/3 whole square
S1 upon S2 will be 16 by 9. Therefore, ratio of surface area will be 16 ratio 9. Let's discuss the third question. A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and its radius of top is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When lead source, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead source dropped in the vessel. The last part is very important here. What we are putting some spherical balls into a cone. When we will put spherical balls into the cone, the water will come out. And the principle which we are going to follow here, that is the Archimedes principle. Volume of water flows out is equal to volume of cone minus, let us say we are dropping n number of lead source, that means n times of volume of lead source which are in the form of sphere, therefore volume of sphere. As per the question, 1/4 of water flows out, that means 1/4 of volume of cone, 1/4 of volume of cone is equal to volume of cone minus n into volume of sphere. Volume of cone, the formula for volume of cone is pi r square h. Volume of cone is pi r square h minus n times the volume of sphere, that is 4 by 3 pi r cube. Let us take capital R is the radius of cone and small r is the radius of sphere. Pi will be cancelled out by taking common, and let us shift r square h here. Therefore, r square h by 4 minus r square h, it will be equal to minus n into 4 by 3 into r cube. LCM ले लेते हैं यहाँ पे. LCM will be 4. This is r square h minus 4r square h is equal to minus n times 4 by 3 into r cube. R square h minus 4r square h will be minus 3r square h by 4. 3 को इधर शिफ्ट करते हैं मल्टीप्लाई में एंड 4n को इधर शिफ्ट करते हैं डिवाइड में. इट विल बी, सॉरी, n को शिफ्ट नहीं करते हैं, n हमें चाहिए r क्यूब को शिफ्ट करते हैं. इट विल बी इक्वल टू माइनस n. n कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. देयरफॉर n विल बी 3 3s are 9 r square h upon 4 4s are 16 r cube. Let's put the values.
9 रेडियस ऑफ आपकी कौन की रेडियस 5 दी है, 5 स्क्वायर इज 25, कौन हाइट इज 8, 16, then we have r cube, that means 0.5 into 0.5 into 0.5, पॉइंट हटा देते हैं, 1000 will be multiplied in the numerator, 5 5 जा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 8 2 जा 16, 5 से आपके पास 1000 कैंसिल होगा 200 टाइम्स, एंड 2 से 200 कैंसिल होगा 100 टाइम्स, therefore 9 into 100, that is 900. 900 is the number of lead salts which are dropped in the vessels. Let's discuss the next question. A pen stand made up of wood is in the shape of cuboid with 4 conical depressions to hold pens. The dimensions of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. That means we are having a cuboid whose length is 15 centimeter, breadth is 10 centimeter, and height is 3.5 centimeter. The radius of each of the depression, we are talking about conical depressions. ये आपका क्यूबॉइडिकल स्ट्रक्चर है जिसमें हमने क्या क्रिएट किए हैं, कॉनिकल डिप्रेशंस क्रिएट किए हैं। इस टाइप का कॉनिकल डिप्रेशन हमारा क्रिएट हुआ है, ठीक है। इस कॉनिकल डिप्रेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन हमें क्या दी गई है, द रेडियस ऑफ द ईच डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर, जो इसकी रेडियस है दैट इज 0.5 सेंटीमीटर, and the depth, that means height of the cone, will be 1.4 centimeter. Find the volume of wood in the entire stent. तो वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपका क्यूबॉइड का टोटल वॉल्यूम है उसमें से हम माइनस करेंगे कॉनिकल डिप्रेशंस का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वुड, that will be equal to volume of cuboid minus, we are having 4 conical depressions, therefore 4 times the volume of cone. This implies volume of cuboid will be length into breadth into height minus 4 times volume of cone will be 1 by 3 pi r square h. वैल्यूज पुटअप कर देते हैं, लेंथ इज 15, ब्रेथ इज 10, हाइट इज 3.5 minus 4 into 1 by 3, pi is 22 by 7, radius of cone is 0.5, therefore 0.25 स्क्वायर करने के बाद, एंड हाइट इज 1.4, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 100 आ जाएगा, 25 वन जा 25 फोर जा, 4 से 4 से आपका 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से आपके पास 14 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, देयरफॉर यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये इट विल बी 15 इंटू 35, 3.5 इंटू 10 विल बी 35 माइनस 22 इंटू 2 बाय 30, 15 into 35 will be 15 5s are 75, carry 7, (525) minus 44 by 30. It will become
एक काम करते हैं, 44 एलसीएम ले लेते हैं, बेटर ऑप्शन रहेगा। डिवाइड में 1 डाल देते हैं, तो इट विल बी 525 माइनस 30 इंटू 30 माइनस 44/30। 525 into 30, that will be 1570750, 15750 minus 44/30, that will be 15706/30। और इसको अगर 30 से डिवाइड करेंगे, then आंसर विल बी 523.33 centimeter cube. Let's discuss the next question. Question number 5. Ramesh made a bird bath for the garden in the shape of cylinder with a hemispherical depression at one end. तो एक बर्ड बाथ बनाया गया है जिसमें से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, मतलब उसमें से हेमिस्फेयर कट करके निकाल लिए गए हैं। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ। टीएसए की बात कर रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ। देखो, जब भी हमें सरफेस एरिया निकालना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वी विल विजुअलाइज द सॉलिड एंड वी विल फील हम उसको टच कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जो जो पोर्शन को आप टच कर सकते हो वो सारा सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया में काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस फिगर को देखें तो आपके पास एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, तो हेमिस्फेरिकल की इनर सरफेस को हम टच कर सकते हैं, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर यूज होगा। सरफेस एरिया, वो भी सी एस से बोल रहे हैं, सी एस से ऑफ हेमिस्फेयर, प्लस अब हम बात करते हैं सिलेंड्रिकल पार्ट की। सिलेंड्रिकल पार्ट में हम देखें तो आउटर बाउंड्री बाउंड्री को हम टच कर सकते हैं जो सी एस से ऑफ सिलेंडर है, सी एस से ऑफ सिलेंडर, प्लस इसके बॉटम में भी सरफेस है, देयरफॉर उसको भी हम टच कर सकते हैं, सरफेस को, बॉटम सरफेस को। दैट विल बी अ सर्कुलर सरफेस, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। That means CSA of hemisphere, that will be 2 pi r square, CSA of cylinder, that will be 2 pi r h। दोनों की रेडियस सेम है, therefore हम सेम ही सिंबल यूज करेंगे रेडियस के लिए। एंड एरिया ऑफ बेस, दैट विल बी अगेन सर्कुलर एरिया होगा, तो पाई आर स्क्वायर। देखो यहां से पाई कॉमन आ जाएगा एंड आर भी कॉमन आ जाएगा, कॉमन निकाल लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा 2r प्लस 2 pi h प्लस, सॉरी पाई निकल गया, 2h प्लस r। दैट मीन्स पाई आर ब्रैकेट 3r प्लस 2h। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुटअप करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज 30 इंटू 3 टाइम्स ऑफ r, 33 are 90 प्लस 2 टाइम्स ऑफ h, दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ 1.45। अब यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हाइट आपकी मीटर में है और रेडियस सेंटीमीटर में है, तो एक काम करते हैं, इसको भी मीटर में कन्वर्जन कर लेते हैं। 1.45 ना रख के 145 सेंटीमीटर रख लेते हैं, बिकॉज 1.45 मीटर इज इक्वल टू 145 सेंटीमीटर। 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में कन्वर्जन कर लिया। 145 का डबल हो जाएगा बच्चा आपके पास 290, दैट मीन्स 22/7 इंटू 30 इंटू 90 प्लस 290, एंड 290 में हम 90 ऐड करें, दैट विल बी 380, दैट मीन्स 22 इंटू 30
into 380 डिवाइड बाय 7। सॉरी, अब इसको 7 से कोई भी टर्म कटेगी नहीं, तो हम काम कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 380 इंटू 30 इंटू 22, दैट विल बी 250800 डिवाइड बाय 7। इसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, आंसर विल बिकम 35828.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दैट मच अमाउंट ऑफ एरिया होगा बर्ड बाथ का टोटल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। The question number 6 is a juice seller served his customers using glasses as shown in the figure. The inner diameter of the cylinder glass is 5 centimeter. जो diameter है वो 5 centimeter है, but the bottom of the glass had a hemispherical raised portion which is reduced the capacity of glass. If the height of the glass was 10 centimeter, find the apparent capacity of the glass and its actual capacity. एपरेंट कैपेसिटी मतलब जो कैपेसिटी उसकी दिख रही है, हमें फील हो रही है, वो हमें लग रहा है कि पूरा सिलेंडर की कैपेसिटी है, ग्लास की कैपेसिटी है। बट एक्चुअल कैपेसिटी निकालने के लिए हमें ग्लास के वॉल्यूम में से, दैट मीन जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसमें से हेमिस्फेयर का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक्चुअल कैपेसिटी निकालते हैं, सॉरी एपरेंट कैपेसिटी निकाल लेते हैं पहले। कैपेसिटी मींस वॉल्यूम। जब एपरेंट कैपेसिटी की बात करेंगे, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। which is equal to pi r square h। वैल्यू पुटअप करेंगे इसके अंदर, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 5 है, 5 का स्क्वायर 25 इंटू हाइट आपको 10 दी है, दैट मीन्स 3.14 इंटू 250। 3.14 इंटू 250 करेंगे तो आंसर आपका आएगा 785। इट विल बी 785 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हुई बच्चा इसकी एपरेंट कैपेसिटी। अब हम एक्चुअल कैपेसिटी निकालना चाहते हैं। एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है, एक्चुअली में कितना इसके अंदर लिक्विड फिलअप किया जा सकता है, दैट विल बी एपरेंट कैपेसिटी माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि बॉटम इसका जो है हेमिस्फेरिकली राइज किया गया है, तो हम हेमिस्फीयर का वॉल्यूम इसमें से माइनस कर देंगे। एपरेंट कैपेसिटी हम निकाल ही चुके हैं, 785 एज इट इज यूज करेंगे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज ऑल्सो 5, तो इट विल बी 785 minus 2/3, pi is 3.14 and r cube will be 5 5s are 25 5s are 125. It will be 785 minus, multiply करते हैं, 125 into 2 is 250 into 3.14 divide by 2। 250 into 3.14 अभी हमने किया था, that is 785, that means 785 minus 785 by 2। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, that will be 2, 785 into 2, that will be 1570 minus 785, that will be 785 by 2। अगर हम 785 को 2 से डिवाइड करेंगे, then answer will be 392.5 सेंटीमीटर क्यूब। कैपेसिटी है इसलिए क्यूब में निकलेगी बच्चा। So this is the actual capacity and apparent capacity is just double of it।
Come to the question number 7. A vessel is in the form of hollow hemisphere. It is a hollow hemisphere mounted on a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14. The total height of the vessel is 13. Find the inner surface area of the vessel. Inner surface area. Inner surface area. That will be, अगर हम इस वेसल पे ध्यान दें, अंदर से ये होलो है, तो होलो देखेंगे तो कैसा कैसा हमारे पास दिखाई देगा. इनर सरफेस में आपके पास बच्चा यहाँ पे सी एस ए ऑफ स्फेयर होगा अंदर की सरफेस में, और सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर भी होगा. दैट मीन सी एस ए ऑफ स्फेयर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सॉरी, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ स्फेयर. इस चैप्टर में जितना अच्छा इमेजिनेशन करोगे उतना इजी आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा. सी एस ए ऑफ सिलेंडर दैट मीन्स 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच माइनस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर. दोनों की रेडियस सेम है इसलिए रेडियस के लिए सेम सिंबल ले रहा हूं. नाउ यहां से अगर हम देखें तो 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, एंड नो माइनस नहीं प्लस करेंगे, 2 पाई आर कॉमन लेंगे, दैट विल बी, यहां पे ब्रैकेट में बचेगा h प्लस आर. नाउ आर तो हमें पता है क्योंकि डायमीटर 14 है, आर विल बी 7, आर विल बी 7 सेंटीमीटर. बट h के रिगार्डिंग हम बात करें, वी नीड द हाइट ऑफ सिलेंडर. टोटल हाइट 13 है और हाइट ऑफ सिलेंडर आपकी 6 बचेगी. कैसे बचेगी, लुक एट हियर. ये आपका सिलेंडर है और इसके नीचे आपका क्या है, हेमिस्फीयर है. दिस इज द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर विच इज 7, और ये टोटल हाइट कितनी है, 13. ये 13 है, ये 7 है, और हमें हाइट ऑफ सिलेंडर चाहिए, तो दैट विल बी 13 माइनस 7. 13 माइनस 7 दैट इज 6 सेंटीमीटर. तो हाइट आपकी 6 सेंटीमीटर यूज होगी. वैल्यू पुटअप कर देते हैं. 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज 7 इंटू 7 प्लस 6 विल बी 13. 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा. इट विल बी 44 इंटू 13. 44 इंटू 13 करेंगे, 13 4 2, it will be 572. 572 centimeter square. Let's take the next question. Question number 8. A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere. जैसा फिगर में दिखाया गया, एक टॉय है जिसमें एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन माउंट हो रखा है. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. Again, total surface area, that means the surface area which we can feel, which we can touch. तो यहां अगर हम देखें तो सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें सी एस ए ऑफ कौन चाहिए, साथ में सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर चाहिए. टी एस ए विल बी सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर. सी एस ए ऑफ कोन का फॉर्मूला है पाई, दोनों की रेडियस सेम है, एक ही सिंबल यूज कर रहे हैं, आर इंटू स्लांट हाइट प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर दैट मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर. यहां से हम पाई आर कॉमन निकाल सकते हैं, तो पाई आर को कॉमन ले लेंगे. ब्रैकेट में बचेगा बच्चा आपके पास एल प्लस 2r. रेडियस हमें पता है 3.5, पाई की वैल्यू भी 22/7, पर स्लांट हाइट नहीं पता, तो स्लांट हाइट के लिए हम लगाएंगे एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. स्लांट हाइट निकालनी है, कोन की रेडियस है 3.5, 3.5 का स्क्वायर
प्लस कोन की हाइट, टोटल हाइट आपकी 15.5 है, उसमें से अगर हम रेडियस माइनस करें दैट इज 3.5, जो आपकी हेमिस्फेयर की रेडियस है, तो आपके पास कोन की हाइट बचेगी 12। तो यहां पे आंसर बचेगा बच्चा 12, 12 का स्क्वायर। 3.5, 3.5 into 3.5, that will be 12.25. L square will be 12.25 plus 144। 12.25 में अगर हम 144 ऐड करें, that will become 156.25, 156.25। Therefore, slant height will be square root of 156.25। और अगर हम 156.25 का स्क्वायर रूट निकालें, देखो 25 है तो लास्ट में आएगा 5, पॉइंट एज इट इज आएगा। 56 होता है 12 13 जा, तो टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर की प्रोडक्ट है 12 13 जा, इसमें से हम स्मॉलर नंबर यूज करते हैं। तो दिस इज अ ट्रिक विच वी कैन यूज व्हेन द नंबर इज एंडिंग विद 25। तो आंसर विल बी 12.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे अब सब। 22/7, रेडियस इज 3.5 into slant height is 12.5 plus 2 times of 3.5 that is 7। पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा। 7 5 जा, 5 2 जा and 2 11 जा, that will be 11 into 19.5। और अगर 11 into 19.5 करेंगे that will be 214.5। टीएस से निकला है सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। Let's discuss the next question. The next question is very important. I'm marking the star here. It is very, very important. Cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere, which is the greatest diameter hemisphere which can have, and find the surface area of the solid। देखो, हमने हेमिस्फेयर को माउंट किया है एक स्फेयर, एक क्यूब के ऊपर, तो उसका जो डायमीटर है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना हो सकता है, दैट इज द साइड ऑफ क्यूब, दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव विल बी 7 सेंटीमीटर। इस पार्ट का आंसर हमारा 7 सेंटीमीटर हो जाता है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, टीएसए ऑफ सॉलिड अगर हम बात करें, देखो अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले जो हम क्यूब है, क्यूब में हमारी 5 सरफेस इंटेक्ट है, बिल्कुल प्रॉपर है। टॉप सरफेस के ऊपर हेमिस्फेयर आया है, तो 5 सरफेस का एरिया तो आएगा, दैट इज 5 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ 5 सरफेसेस, द 4 वॉल्स एंड द बॉटम। प्लस अब मैं टॉप की बात करूं तो हेमिस्फेयर का भी टॉप अवेलेबल है, दैट मीन्स हेमिस्फेयर का सीएसए अवेलेबल है, सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर। प्लस अब देखो ये पार्ट भी हमारा बचा है जिसको मैं शेड करने जा रहा हूं, दिस वन। हमें ये वाला पार्ट भी निकालना है। चारों टाइप के छोटे छोटे कॉर्नर्स बचे होंगे और इनका एरिया भी हमें एडअप करना है। तो अगर इसको मैं टॉप व्यू देखूं तो टॉप व्यू कुछ ऐसा दिखेगा आपको। टॉप सरफेस को अगर हम ध्यान से देखें तो एक स्क्वायर है, स्क्वायर के टच करने वाला एक सर्कल दिखाई दे रहा है, और हमें ये वाला एरिया निकालना है, शेडेड रीजन जो मैं कर रहा हूं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर का एरिया और उसमें से सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। स्क्वायर का एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सर्कल जो ये बना है इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इट विल बी 5a स्क्वायर विल प्लस ए स्क्वायर विल बी 6a स्क्वायर। हेमिस्फेयर का जो सीएसए होता है दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर।
माइनस पाई आर स्क्वायर। देयरफॉर टोटल टीएसए जो होगा इस पूरे क्यूबॉइड का, एंड उसके ऊपर जो हेमिस्फेयर माउंट किया है, पूरी जो स्ट्रक्चर बन गई है, दैट विल बी 6a² प्लस पाई आर स्क्वायर। 6 साइड ऑफ द क्यूबॉइड इज 7, देयरफॉर 7 स्क्वायर आएगा यहाँ पे, प्लस 22/7। रेडियस जो है वो हो जाएगी आपके पास 7/2, बिकॉज डायमीटर इज 7, तो रेडियस विल बिकम 7/2। ये हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2, 7/2 7/2 कैंसिल हो जाएगा। 6 इंटू 7² इज 49, प्लस 2 से 22 जाएगा 11 टाइम्स, इट विल बिकम 11 इंटू 7/2। 6 इंटू 49 अगर हम करें, दैट विल बी 294 प्लस 77/2। सीधा सीधा 77 का हाफ कर लेते हैं, 77/2 दैट विल बी 38.5। 294 माइनस, सॉरी, प्लस 38.5। अब इसमें अगर हम 294 ऐड करेंगे तो लास्ट में तो 0.5 आ जाएगा, दैट विल बी 0.5, तो लास्ट में ही आ गया आपके पास में। टू 294 प्लस, इट विल बी 2 3 and 3 332.5 centimeter square. That will be the total surface area of the solid. Now let us discuss the next part, that is question number 10. The question number 10, it is saying a medicine capsule is in the shape of cylinder with two hemispheres stuck to each end of the cylinder. तो सिलेंडर के रिगार्डिंग बात की गई है। सिलेंडर में उसने बोला है कि दोनों एंड्स पे हमारे पास हेमिस्फेयर है, दीज आर द हेमिस्फेयर जो दोनों एंड्स पे लगे हुए हैं कैप्सूल में। और इन हेमिस्फेयर के रिगार्डिंग भी बोला गया है, जो कैप्सूल का डायमीटर है दैट इज 15, और इसकी जो कैप्सूल का एंटायर लेंथ है दैट इज 14। सबसे पहले यहाँ पे रेडियस ऑफ स्फेयर की बात करते हैं, तो दैट विल बी, हेमिस्फेयर की बात करते हैं, दैट विल बी 5/2। हेमिस्फेयर का जो रेडियस होगा दैट विल बी 5/2, और उतना ही आपका सिलेंडर का भी रेडियस होगा। तो रेडियस तो आ जाएगा बच्चा 5/2 mm। नाउ सिलेंड्रिकल पार्ट की अगर हम बात करें, ये वाली अगर मैं लेंथ निकालना चाहूँ सिलेंड्रिकल पार्ट में जो इसकी हाइट बनेगी, तो उसे निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 14 माइनस, देखो दोनों तरफ यहां से यहां तक भी रेडियस है आपके स्फीयर की, और इस तरफ भी रेडियस है। तो 14 में से हमने 2 टाइम्स ऑफ रेडियस मतलब डायमीटर माइनस करना है, और डायमीटर इज 5, देयरफॉर आंसर विल बी 14 माइनस 5 इज 9 mm। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है हम यूज करेंगे 9 mm। अब इसने इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा है टीएसए। अब टीएसए में अगर हम देखें तो हमारे पास एक तो सिलेंडर का टीएसए आएगा दैट इज 2πRh। एक एंड पे हमारे पास हेमिस्फेयर है तो उसका एरिया आएगा 2πr², और दूसरे एंड पे भी आपके पास हेमिस्फेयर लगा हुआ है स्फेरिक, इसका भी आपके पास सीएसए आएगा दैट इज 2πr²। नहीं, यहां से हम 2πr कॉमन निकाल सकते हैं, ब्रैकेट में बचेगा h प्लस आर प्लस आर। वैल्यूज पुटअप करते हैं, 2 22/7, रेडियस इज 5/2 इंटू h is 9 plus r that is 5। r is 5/2, r plus r will be 5। r plus r मतलब डायमीटर आ गया हमारे पास। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 22 5 is 110 डिवाइड बाई 7 इंटू 9 प्लस 5 विल बी 14। 7 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो आंसर बच्चा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। 220 millimeter square will be the answer.
दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आपका फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कशन किया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी इसका रिलीज होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।